Yesterday we have seen that the relation between potential difference and electric field, same as it was there in the electrostatics, same relation we are using here. Sometimes electric field we have to use somewhere, or potential difference, that they are related with the same relation. V is equal to ED. D is replaced by L. And so L is the length of the conductor, V is the potential difference across the conductor. Right? Now current also we have defined. It is a ratio of charge flowing to the time taken for that charge flowing. And delta Q or Q we can write. And delta Q will be equal to NE. N is what? N is the number of electrons crossing any cross section. Free electrons जो होते हैं, E is the charge and electron. अच्छा, whenever there is the disconnection of the link, immediately I will close, or you just call me and immediately I will close. And again you rejoin with the same ID and same number. It takes hardly half minute to rejoin again in this case. Okay. Whenever some problem comes, immediately inform me and I will leave the meeting, again join the meeting, again we'll restart the meeting with same number you join. And if it less than 5 minutes in the ending, then you don't join. If it is more than 5 minutes remaining, we'll join and again we'll continue with that. We'll utilize that 5-6 minutes अगर उससे पहले होता है. Or to ready, be ready. Generally it doesn't happen. Yesterday I don't know why it is. So you rejoin again with the same ID, same password. Okay, chalo. Current is the instantaneous value, rate of flow of charge in case of variable currents, variable nature of the charge. We have to use this relation, second one. And if constant current flows, both will give you the same value. Average current as well as instantaneous current, दोनों same आएंगे. अगर suppose एम्पियर दिखा रहा है constant current 2 ampere, ammeter दिखा रहा है constant current 2 ampere. So if data are given, you find out with this relation, it will be showing same. है ना? तो यूनिफॉर्म के केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू कम्स सेम. एंड direction of current is same as that of flow of positive charge, or opposite to negative charge, flow of negative charge, or we can write from positive end of the conductor to negative end of the conductor. These point already we have seen: galvanometer, ammeter. They are the instrument which indicate the presence of the current in the circuit. Now if current is constant, then that point already told you is current constant है, तो average current and instantaneous current both will be same, है ना? And this current जो होता है ना, ये current, in fact this instantaneous value is also the average value provided time interval approaches 0. मैथ्स की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, average current or average velocity will become the instantaneous velocity when time interval becomes 0. Same thing is applicable here also. ठीक है, तो करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें? करंट क्या है, चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं, है ना? चार्जेस क्यों फ्लो होते हैं, दैट यू नो. चार्जेस क्यों फ्लो होते हैं, व्हाई, व्हेन चार्ज विल फ्लो. जैसे अपना वाटर क्यों फ्लो होता है, वाटर करंट इज व्हाट, वाटर करंट जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस से और लेवल डिफरेंस से. सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस. करेक्ट, यहाँ पे potential difference is there. हाँ, potential difference is equivalent to pressure difference और level difference, है ना? तो वाटर करंट में क्या फ्लो होता है, पानी. एयर करंट में एयर फ्लो होती है. इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स है ना. इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होते हैं, पर्टिकुलर ड्रिफ्ट होते हैं. पॉजिटिव मींस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं ड्रिफ्ट होके, क्योंकि फोर्स उनको पॉजिटिव टर्मिनल उनको खींचता है अपनी तरफ, है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट. एंड व्हेन दिस हैपेंस, थिंग्स वर्क, है ना? बिकॉज ऑफ करंट जो है, अपना आईपैड चल रहा है तुम्हारा जो है, तुम्हारा यू आर एबल टू लिसन द लेक्चर है, तुम्हारा भी सिस्टम करंट की वजह से ही ऑन है ना? डू एनीबडी सी द लेक्चर ऑन द मोबाइल? मोबाइल पे दिखता है क्या प्रॉपर, कि छोटा दिखता है बहुत? मोबाइल पे मत दिखा करो, है ना, मोबाइल पे बहुत छोटा दिखता होगा. तो यू, एज लॉन्ग एज यू आर एट होम, यूज द लैपटॉप, है ना, एंड सी इट प्रॉपरली. ठीक है. नाउ
these points are okay. We'll solve one or two numericals. हम लोग थोड़ा सा numerical solve करके देखेंगे इसका. तो देखो, let's see. Constant current of 1 ampere flows in the wire. Find number of electrons crossing any cross section in the in 1 second. In 1 second, and just let me correct it properly. In 1 second, ठीक है? तो how do we solve it? Charge निकालनी है ना? Current is given, time is given. Q is equals Charge, to. हाँ, चार्ज नहीं निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने. पहले क्यू निकाल लेंगे ना, उसके बाद क्यू निकालने के बाद व्हाट विल डू? क्यू इज इक्वल टू NA. हाँ, Yes. दैट्स ऑल. तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. कांस्टेंट करंट है तो ऐसे लिख सकते हैं, और क्यू को हम एन ही लिख सकते हैं, पहले से ही लिख सकते हैं या बाद में लिखो. तो एन विल बी इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई, है ना. तो आई 1, टाइम भी 1 है, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻90. ये ऑलरेडी हम इसको फर्स्ट चैप्टर में इसको सॉल्व कर चुके हैं. 6.25 इंटू 10⁻18. These many electrons will be crossing. These many electrons will be crossing any cross section in 1 second. Quite a big number, billions of billions of billions. Huh? These many electrons are crossing any cross section in 1 second. You may be wondering that why the conductor is not getting vacated completely. Electrons itne flow ho rahe. It should be, all the electrons should be flowing and flowing out of the conductor. But jitne electrons enter hote hain end se, jitne exit hote hain utne enter hote hain, है ना. और बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं. Do you have any idea how many free electrons are there in the conductor? किसी को आइडिया कितने होते हैं? 10⁻29 electrons, free electrons, I am telling you, free electrons per meter cube. This much big number is there. तो quite a lot of free electrons. और सेमी कंडक्टर में जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम में 10⁻15-16 होते हैं. ऐसे इंसुलेटर्स हैं, वुड है, ग्लास है, उसमें 10⁻8-9 ऐसे रहते हैं. कंडक्टर हैज गॉट big number, huge number of free electrons in per meter cube. ठीक है. So this is big number, but as far as that current is concerned or electricity is concerned, it is not big number. Of course, in terms of rupee, it is very big number, है ना. But in terms of electrons, it is small number, है ना. It makes not that much difference. Current 1 ampere है. 1 ampere पता कितना? Suppose your fan is running now. तुम्हारे रूम में कितना करंट फैन में जा रहा होगा? बोलो, एनी आइडिया? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर और 50 एम्पियर और लेस देन 1 एम्पियर? कैन एनीबॉडी टेल मी? ओम्स लॉ लगा लो. I इज इक्वल टू V बाई R, V 220. लेकिन रेजिस्टेंस पता नहीं. रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं पता. बल्ब का रेजिस्टेंस पता होता है. बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है ना, 100 वाट बल्ब का. फैन का भी कम ही होता है रेजिस्टेंस. नहीं, फैन का आई डोंट नो, वी हैव टू चेक इट. बल्ब का पता है मुझे. 100 वाट का जो है 484 होता है. तो नियरली हाफ, 0.45 कुछ आएगा. लेस देन हाफ एम्पियर करंट फ्लोज व्हेन द 100 बल्ब. अभी तो एलईडी आ गया. एलईडी का काफी कम होता है रेजिस्टेंस. तो जनरली वायरिंग में व्हेन फैन इज रनिंग, ट्यूबलाइट इज देयर, ट्यूबलाइट इज ऑन, है ना. तो इसमें लेस देन 1 एम्पियर करंट होता है. एंड टीवी वगैरह में भी कम होता है करंट. जो स्विचेस घर में लगे रहते हैं ना, दे आर 5 एम्पियर स्विचेस एज फार एज these connections are concerned. But AC and freeze, AC के लिए 15 एम्पियर का स्विच होता है, बड़ा होता है. उसमें थोड़ा ज्यादा करंट होगा, है ना. मे बी 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर. इसलिए 15 एम्पियर का स्विच लगाते हैं. 1 एम्पियर is normal. Less than 1 ampere current flows in the electrical wiring of household. Anything, anybody want to clarify something? कुछ पूछना है या बोलना है? सर, अगर हम लोग Q को डिफरेंशिएट करके Q को डिफरेंशिएट करें और तब T की वैल्यू डाले तो वैसा सॉल्व नहीं कर सकते. Q कहाँ है अपने पास? Q कहाँ है? Q इज इक्वल टू, चार्ज Q का रिलेशन नहीं दिया ना. Q का रिलेशन नहीं दिया. अभी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? Q का रिलेशन टाइम के टर्म्स में होगा ना, तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं.
अपने अभी हम करते हैं ना वो क्वेश्चन भी आते हैं ना, इसमें नहीं कर सकते। इसमें क्या है, इसमें जो है ना, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या ज्वाइनिंग में? एनीबडी हैज प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग? कुछ कनेक्शंस की, एक मिनट, जस्ट लेट मी टॉक, समबडी हैज प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग। भूपेश, यू ज्वाइंड और व्हाट? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो, एक मिनट। हाँ भूपेश, यू ज्वाइन है ना? सबको आवाज आ रही बराबर? यस जी सर। सारे सोनिया, ओके चलो। नाउ तो करंट का जो है ना, जब फंक्शन दिया होगा ना क्यू का टाइम के टर्म्स में, तब डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो यहाँ पर हमें इक्वेशन नहीं है, अभी आगे है ना सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो है। लेट मी टेल यू सम मोर पॉइंट अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि करंट, हाँ, जो जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, कार वगैरह या टू व्हीलर, इन दैट केस लॉट ऑफ करंट गोज इनटू द वायर, इसलिए थिक वायर होती है। इफ यू सी द बैटरी जो होती है ना, अगर तुमने कभी ध्यान से देखा होगा, कार का जो बोनेट खोलते हैं तो बैटरी दिखती है, उसमें बहुत मोटी लीड होती है। हाउस होल्ड की जो वायरिंग होती है ना, उससे 10 टाइम्स थिक वायर, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट द कार और इवन टू व्हीलर, लॉट ऑफ करंट गोज इनटू द वायर, इसलिए थिक वायर रखनी पड़ती है दैट मोमेंट व्हेन इट इज, बिकॉज हैवी इंजन्स आर वेरी वेरी हैवी, उसको घुमाने के लिए मोटर को बहुत पावर चाहिए। in that case lot of current goes when it is started, then normal electric wiring जो होती है उसमें horn और अपना headlights and in that less current is there, but starting current is very huge in that, maybe 100 ampere. Just I will check on Google how much is that current, because load is lot of load is there, maybe that 20 30 50 40 ampere current or more than that, but अपने घर की वायरिंग में इतना नहीं है, maximum 5-6 ampere, that's all. You can just see that current ohms law से हम सब निकाल सकते हैं कितना लोड है, कितना वोल्टेज है। कार की बैटरी मैंने बताया 12 वोल्ट की होती है ना, और घर की जो सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट। तो वी कैन यूज द ओम्स लॉ एंड फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, करंट एंड जो भी चाहिए हमें, करंट पता तो रहे। ओम्स लॉ भी हम आने वाले हैं ओम्स लॉ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द वेरिएबल चार्ज। इसमें देखो Q टाइम डिपेंडेंट है, T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, एंड 1 पर 1 कूलम है, 2 पर 4 कूलम, इट इज चेंजिंग। तो इसमें जो है Q बाई टी नहीं कर सकते हैं, ऐसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज वेरिएबल नेचर, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर जो क्वेश्चन है Q बाई टी, तो तुम ऊपर टी स्क्वायर बाई टी, ऐसा नहीं होगा, टी बच गया और इससे तो 2 आ रहा है ना, वो देखते क्या आएगा। तो दिस इज द रॉन्ग वे, even if you get the right answer, but this is not the proper way. Let's do that. Second, it is variable condition. Let's differentiate it. I is equal to dq by dt. तो वैल्यू पुट कर देंगे चार्ज की, q is t स्क्वायर, तो 2t। तो ये करंट टाइम डिपेंडेंट फंक्शन आ गया, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इट इज वेरिएबल। एट इनिशियली इट इज 0, t इज इक्वल टू 0 पर 0 है, बट हमें कितने पे चाहिए? एट t इज इक्वल टू 2, I will be 2 into 2 4 है ना, so that's how it goes. ठीक है, simple questions, no problem, you can keep, हाँ बोलो anything, तो we can just कर रही थी। हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके Yes. चलो फिर नोट करते जाओ यहाँ का जो है, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क के लिए देखो। इफ टी, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, दैट आल्सो यू नोट डाउन, टी is equal to root q 2 seconds, टाइम एंड चार्ज का फंक्शन दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। ठीक है, तो नोट कर लो, सिंपल है क्वेश्चन, जस्ट डिफरेंशिएशन अगेन, नो बिग डील इन दिस, है ना, तो तुम कर सकते हो बहुत आसानी से, बस होमवर्क में करो इसको, नॉट हियर। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी से। We'll discuss the answer tomorrow. Now, just I'm showing you once more. Just those who are not written can write quickly. Okay. Now we are seeing the charge flowing in the conductor. So many times questions जो है charge flowing के बारे में भी आ जाता है
है ना। तो चार्ज कितना है, चार्ज सेम जो रिलेशन है ऊपर डेफिनेशन, उससे हम चार्ज का रिलेशन बना सकते हैं। सी वी नो दैट I is equal to dq by dt, तो क्रॉस मल्टीप्लाई dq is equal to I dt, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, दिस साइड आल्सो दिस साइड आल्सो, तो ये q हो गया एंड हियर इज I dt, है ना। तो बस यहाँ पर कुछ लिमिट होगी, कितने टाइम से कितने टाइम, t1 टू t2 जो भी टाइम दिया होगा पुट कर देंगे, 0 से 2 सेकेंड या 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड लाइक दिस, तो जो भी लिमिट होगी विल पुट इट लेटर। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन मतलब ज्वाइन करने, छोटे छोटे एरिया को ज्वाइन करना, तो दैट इज व्हाट एरिया ऑफ द फंक्शन। ये जो इसका जो फंक्शन होता है आई एन टी का, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, एरिया ऑफ द आईटी ग्राफ, एरिया ऑफ द आईटी ग्राफ, ठीक है। तो जो दो क्वांटिटी मल्टीप्ल दो क्वांटिटीज का इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहा है, टाइम टाइम के साथ जो दूसरी क्वांटिटी है उसका ग्राफ बना लिया जाए, तो ग्राफ एरिया निकालना, मेनी टाइम्स एरिया निकालना इजी होता है इंटीग्रेशन से, तो यू विल ऑप्ट फॉर दैट। एरिया जो है ट्रायंगल के सिचुएशन मिलेंगी, जैसे नीचे क्वेश्चन है, ट्रायंगल मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, तो एरिया इज इजियर टू फाइंड आउट देन दैट इंटीग्रेशन, है ना। तो बट समटाइम्स इट इज वेरिएबल कंडीशन, पैराबोलिक रिलेशन होगा इस तरह से ना, तब हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, देन वी हैव टू फॉलो द इंटीग्रेशन, है ना। फंक्शन भी दिया होगा, समटाइम्स यू हैव टू मेक द फंक्शन, समटाइम्स इट विल बी गिवन। नाउ फिर से हम एवरेज करंट, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ओके, जस्ट मैं माइक को और पास में लेके आता हूँ अभी। नाउ इट्स ओके, माइक इज वेरी क्लोज टू माय फेस नाउ। अभी आ रही है आवाज, बोलो यस और नो, अदर्स कैन अनम्यूट एंड टेल मी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आ रही है। एक मिनट, आ रही है, थोड़ा सा तुम अपना माइक देख लो, हाँ माइक देख लो तुम, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार तुम उसको हेडफोन निकाल के उस फिर से डाल दो, तो हो सकता है हो जाए, ठीक है। एक बार वायर को थोड़ा हिला लो, ठीक है, ओके, राइट। नाउ वी आर एवरेज करंट पे वापस चलते। एवरेज करंट जो हमने, एवरेज करंट जो पढ़ा था हमने, इट वाज व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। एवरेज करंट वाज चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो चार्ज हमने अभी यहाँ से देखो, चार्ज का एक नया दूसरा फंक्शन बनाया है, तो ये चार्ज का यहाँ पुट कर देंगे, चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो अगर हमें वेरिएबल कंडीशन है तो आई डी टी इज द चार्ज, और टाइम का भी हमें जो होगा, टाइम का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे जो दो टाइम इंटरवल होंगे उसको हम लोग माइनस करके लिखते हैं, t2 माइनस t1 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट गोस, है ना। तो ये तुम्हें काम आएगा ये रिलेशन, तो यू जस्ट राइट द रिलेशन, इट इज वेरिएबल कंडीशन में, कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने न्यूमेरिकल भी किया था, करंट अगर वेरिएबल है तो पहले हमें यहाँ से चार्ज निकालना पड़ेगा और फिर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन से अवॉइड करना है तो यू गो एरिया निकालो। तो नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। फाइंड द चार्ज फ्लो, सॉरी इसको ब्लू से लिखते हैं, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम 0 to 10 एक बार सेकेंड। क्लू दे दो ना, क्लू मिलेगा, अभी थोड़ा सा देखो, सोचो ना, क्लू देने से क्या है, फिर तुम लोग डिपेंडेंट हो जाते हो। जब तुम सोच, अभी ऊपर जो पढ़ा ना उसको सोचो कि भाई हमें क्या क्या पॉइंट दिए, 50 कौन सा कूलम यूज हो रहा है। हाँ 50 कैसे किया, एरिया का ट्रायंगल निकाल, एरिया बताया अभी मैंने, triangle बताया का ना एरिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, तो थोड़ा सा डिपेंडेंसी खत्म करो। क्या होता है, थोड़ा सा सोचो उसको कि सर ने बताया है कौन सा फार्मूला, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट क्लू फॉर एवरी क्वेश्चन। आप आगे पढ़ाते जाएंगे ना, तुम्हें क्लू मिलते जाएंगे, तो सोचने का टाइम देता हूँ, थोड़ा सॉल्व करने का टाइम, इसीलिए बोलता हूँ होमवर्क करके भेजो। स्टूडेंट्स बहुत इंप्रूव कर जाते हैं जो होमवर्क करके भेजते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में एकदम से वो एक्सपर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, विद इन मैटर ऑफ 10-15 डेज। 11th के स्टूडेंट जो अभी रोज का रोज सॉल्व करके भेजते हैं, दे आर इंप्रूविंग अ लॉट। आई जे के क्वेश्चन भी बीच में देता हूं उनको। Infinity to 1. सॉरी, Infinity to 1. इन्फिनिटी टू 1 क्या है ये, व्हाट इज दिस?
सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ असल में मैं सर डिस्कनेक्ट हो गई थी तो अभी वापस से कनेक्ट हुई हूँ. हाँ, तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, लिसन. फाइंड द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम टाइम 0 to 2 सेकेंड. फ्रॉम टाइम लिख देता हूँ, फ्रॉम टाइम 0 to 2 सेकेंड. ठीक है, तो ये ग्राफ देखो, 0 यहाँ पर है और t एक्स एक्सिस पे है और y एक्सिस पे करंट है. ठीक है, दैट मैं चिन्ह ऊपर जो टॉपिक पढ़े उसको रिलेट करो, कोशिश करो, कल हम सॉल्व करेंगे इसको, है ना. इसका सेकंड पार्ट भी है, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्व, 2 मैंने किए, अभी तुम 2-3 तुम भी ट्राई करो, कल तो हम करने वाले हैं ना. तो चार्ज निकालना, चार्ज के कौन कौन से फार्मूले, ये तो चार्ज का दिख रहा है तुम्हें, या तो इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है या एरिया निकालना पड़ सकता है. इसका IT ग्राफ यहाँ पे देखो, आए है, यहाँ पे टी है, सामने दिख ही रहा है सब कुछ. ठीक है, ओके, आवाज आ रही तुम लोग को क्लियर? आगे बढ़े. तो आल्सो फाइंड द एवरेज करंट फ्रॉम 0. एवरेज करंट का मैंने ये लिखा है, देखो, दो फार्मूले बताए, दोनों का एक एक पार्ट दे दिया मैंने. चार्ज मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा. टाइम कितना दिया है इसमें सेकंड पार्ट में, 0 to 10 सेकंड. तो T2 minus T1 10 सेकंड. तो ये तुम क्वेश्चन नोट कर लो, दिस इज गुड क्वेश्चन बोर्ड के लिए. अभी कुछ बोलो, अभी आंसर मत बताओ, जस्ट आंसर हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट हमें आगे भी काम आएगा. चार्ज निकालना, अभी जब मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं ना, पहले हमें इससे चार्ज निकालना पड़ता है और फिर हमें आगे सॉल्व करना पड़ता है. तो ये क्वेश्चन आगे भी तुम्हें मिलेगा. नोटेड. चलो फिर आगे बढ़े. ठीक है, करंट, आई थिंक दिस मच इज इनफ. एवरेज करंट का आंसर 5 है क्या? एवरेज करंट, चार्ज कितना है टाइम से, हो सकता है सही आंसर हो. ठीक है, चार्ज, एवरेज करंट के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, चार्ज भी तुम्हारे पास है, टाइम भी है, तो हो जाएगा. ठीक है, ओके, ठीक है. चार्ज फर्स्ट पार्ट पे निकाल के नीचे टाइम से डिवाइड कर देना. ये जो होता है ना, यहाँ पे देखो, ये जो, इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 minus T1. डेल्टा टी इंटीग्रेशन का मतलब T2 minus T1 होता है, क्योंकि वही लिमिट यहाँ भी आती है, T1 to T2. ये मैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर. तो ये करंट से रिलेटेड अपने पास एक नेक्स्ट टॉपिक जो है करंट डेंसिटी है. कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी कितनी होती, करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, है ना. तो सपोज करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर में थिन वायर है, दूसरी थिक वायर है ना. तो उसमें एक नया टर्म जो है करंट डेंसिटी का टर्म एक इंट्रोड्यूस किया गया है वेरियस टेक्नोलॉजिकल पर्पज के लिए. तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर, है ना. तो सिंबल इसका J है, J सिंबल है, स्मॉल J लिख सकते हैं या कैपिटल भी लिख सकते हैं. J कैप नहीं, J है. करंट डेंसिटी, इट इज द रेशियो. अच्छा, वैसे तो जो डेंसिटी होती है, जस्ट लिसन, डेंसिटी जो होती है दैट इज वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है ना. जैसे हमने मास डेंसिटी पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी पढ़ा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो डेंसिटी है यहाँ पे, डेंसिटी जो है थोड़ा मिसलीडिंग है. यहाँ पे हम करंट अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखने वाले, करंट पर यूनिट एरिया लिखा जाता है. करंट पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन एरिया. ठीक है, तो लेट्स सी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन. इट इज द रेशियो ऑफ करंट क्रॉसिंग टू द पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेशियो ऑफ करंट crossing to the area of cross section, ratio of current crossing to the conductor and to its area, है ना. यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. of the cross section of conductor. ठीक है, I रेशियो ऑफ करंट अपॉन एरिया, ऐसा सिंपल. तो इसका यूनिट क्या होगा, इजी है ना, यूनिट इज इजी. करंट का एम्पियर
एरिया का मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। ना, ठीक है ना। एंड बट दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इंटरेस्टिंग है ना। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये एरिया है, ये एरिया हैज टू बी मेड वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कैसे वेक्टर क्वांटिटी, बट इसकी डायरेक्शन लिखते हैं। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी बट इट इज फ्लोइंग इन द वायर। ये तो पता ही है ना, वायर में फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इट इज गोइंग, है ना। लेफ्ट टू राइट जा रहा है करंट, तो वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो करंट अपनी वो डायरेक्शन हो जाएगी करंट डेंसिटी की। ठीक है, क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म, अभी हमें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए इसको, है ना। तो लेट्स सी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज लाइक दिस। आई जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो आई को हमने एक साइड में शिफ्ट किया, और जे डॉट ए, तो जे को ए को इस तरफ लेकर दूसरे, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। बट इट इज जे डॉट ए, जे इज द एरिया वेक्टर, नहीं, जे इज द करंट डेंसिटी, ए द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमने गॉसेस लॉ में सीखा था फ्लक्स के। ये सपोज ये तुम्हारा एरिया है, इस तरह से एरिया है, तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर आएगा उसके। करंट ऑफ कोर्स इसमें सपोज ऐसे करंट दिया, लेफ्ट टू राइट फ्लो है, तो एरिया वेक्टर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड, जरूरी नहीं हमेशा एरिया इंक्लाइंड ही हो, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, ऐसा भी हो सकता है। हमें दिया रहेगा एरिया वेक्टर के बारे में, तो दोनों वी विल गेट द डिफरेंट आंसर फॉर डिफरेंट एरिया वेक्टर। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, अभी डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा आता है कि साइन थीटा आता है? व्हाट डू वी गेट इन डॉट प्रोडक्ट? साइन और कॉस? कॉस आता है डॉट प्रोडक्ट में। तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्वांटिटी, जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी उनके बीच का एंगल है ना? ठीक है, तो लेट मी शो यू विद द लेटर। ठीक है, एरिया जो है तुम्हारा, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया होता है, जो एरिया की बात करते हैं उसका। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है वो एरिया लेना पड़ेगा हमें, उस एरिया की बात हो रही। ठीक है, तो जे ए, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, जो फार्मूला लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड होते हैं। ये भी कॉस थीटा जो है की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो भी थीटा दिया होगा, या फिर हमें वैसे दिया होगा यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया होगा, तो फिर कॉस थीटा की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कैसे करते हैं? कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये दिया यूनिट वेक्टर के टर्म में, ये दिया यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो यहाँ पर हमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 का 2 के साथ, फिर ये वाला 2 माइनस 2 के साथ, तो ये 2 एम्पियर आ गया, है ना। सिंपल, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारा, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो यू कैन जस्ट मेक द नोट एंड देन वील सी। इसके 2 क्वेश्चन और करने वाले हम लोग करंट डेंसिटी के। एंड जो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन है, आई एम प्लानिंग टू कीप इट टुगेदर। जैसे क्लास खत्म होगा ना, फिर से लॉग इन कर लो, 7:15 तक हम कंटिन्यूअस करके फिर विल देन फिनिश दैट। ठीक है कि ना? ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन जो बाकी है अभी, इमीडिएटली द कनेक्शन गोस, लिंक गोस, इमीडिएटली रीजॉइन एंड अप टू 7:15 we'll discuss and then we'll wind up. ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, नो? ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, 70 के ऊपर क्वेश्चन थोड़े से बाकी हैं, तो आज या कल तक खत्म हो जाएंगे। 10-15 क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास ही अटकी हुई थी 7 o'clock जब आपने चालू की, तो अटकी नहीं थी, किया ना इन्होंने 7 o'clock। पहले तो अपना लिंक चला गया था, तो फिर मैंने कैंसिल ही कर दी, फिर 7 तो o'clock मैंने वापस स्टार्ट किया। 7 o'clock वापस वाले में भी अटका हुआ था। नहीं, तुमने थोड़ा पहले ज्वाइन किया होगा शायद। 7 o'clock पे हम लोगों ने किया था ना, ये सब थे 4-5 स्टूडेंट थे। फिर Yes, से आ sir. जाएगा ना, वो तुम्हें चाहिए तो वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है वो वाला लेक्चर। ठीक है, तो देख लेना, लेक्चर नंबर मतलब कल की डेट का वो डाला हुआ है। और आज फिर उसके आगे पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन छूट गए कर सकते हो तुम। ठीक है, तो आज कंटिन्यूएशन में करके 7:15 पे क्लोज कर देंगे, टाइम भी सेव होगा। चलो, थोड़ा सा टाइम अभी इसमें बाकी है, जस्ट 5 मिनट है। तो देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसको
if current is flowing in non-uniform conductor, find the ratio of current densities if ratio of the radii is 2:1, है ना? तो फार्मूला लिखेंगे ये J का फार्मूला क्या है अपने पास, J is equal to I by A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हुई है क्या? नहीं सॉरी, J is equal to I into A, यहाँ पे देखो I into A है, और J तो हमें किसका चाहिए था, करंट डेंसिटी का रेशियो चाहिए आपको, तो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नो प्रॉब्लम। अगर हमें करंट का करंट डेंसिटी, एक मिनट सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही क्या? सर इसमें ए Hold on. स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? नहीं मिस्टेक, एक मिनट जस्ट देखो पहले, जस्ट करंट डेंसिटी चाहिए ना, यहाँ पे देखो I by A है, करंट का रेशियो चाहिए तो J into A। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मैं करंट पहले लेट अस क्लियर द फैक्ट्स, अपने को थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट डेंसिटी का रेशियो चाहिए I upon A, ठीक है, A विल बी पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, चलो इसको I by A पूरा कटो करो, चलो सामने ही सॉल्व करने चाहिए जैसे हम लोग क्लास में करते हैं ना, वैसे करने चाहिए। चलो रेशियो ऑफ रेडियाई 2:1 था ना, ओके। तो चलो अभी फार्मूला लिखेंगे, J is equal to I by A if the current flowing in non-uniform cross section, करंट का हमें रेशियो दिया, चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये जल्दी में मैंने क्वेश्चन लिखा था, इट इज नॉट द बुक क्वेश्चन, मैंने बनाया था इसको। इफ द करंट इज non-uniform conductor, find the ratio of current densities if same current flows। चलो same current flows, तो ये तुम्हारा करंट का कैंसिल हो जाएगा, I सेम है तो अपॉन A1 I अपॉन A2 सेम करंट हो गया, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। A2 क्या लिखेंगे, पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, पाई भी कैंसिल हो गया। R2 बाई R1 जो है हमें क्या दिया, R2 बाई R1 दिया कि R1 बाई R2 दिया, तो ये तुम्हारा स्क्वायर है, तो दिस इज R1 बाई R2। सीक्वेंस में ऐसा ही होता है ना, R1 बाई R2 गिवन 2:1। हमें जब दी होती तो हम सीक्वेंस में जो पहले टर्म आता है उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। तो क्या आ रहा है फिर यहाँ पे, R2 बाई R1 विल बी 1/2 स्क्वायर, 1/4 1/4 आएगा ना, इसको 1/4। तो ये थोड़ा सा तुम्हें फार्मूला याद रखने हैं, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ अपन फार्मूला याद नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। 2:1 गिवन वैल्यू, ठीक है। इसमें करंट भी डिफरेंस दे सकते हैं, करंट का रेशियो अगर तुम्हें दे देंगे ओके, करंट रेशियो इज आल्सो 2/1 या 1/2, है ना। तो जिसमें ज्यादा रेशियो, ठीक है ना, करंट डेंसिटी का रेशियो आ गया। देखो जो थिक कंडक्टर था, यहाँ पे देखो इसको हम लॉजिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड। थिक कौन सा है, पहला वाला, और थिक में करंट डेंसिटी इनवर्स, देखो यहाँ पे देखो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस करंट डेंसिटी फॉर सेम इफ करंट इज कांस्टेंट। ज्यादा थिक है ना तो करंट डेंसिटी कम है, एक थिन वायर है एक थिक वायर है, तो थिक वायर में करंट डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे कौन सा थिक है देखते हैं, थिक कौन सा, ये वाला है, तो उसकी करंट डेंसिटी कम आनी चाहिए, उसका 1 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, थिन वाले का। रेडियस का रेशियो था ये, जबकि हमें एरिया के रेशियो से डील करना है, इसीलिए 1/4। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन का रेशियो होता तो 1/2 आ जाता। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। थिकर द वायर लेसर इज द करंट डेंसिटी, सिंपल, एंड वाइस वर्सा। तो ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में तुम्हें देना चाहता हूँ, ये वाले क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो, ये इसमें ये बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन जनरल रेयर डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होगा बोर्ड के लिए। इफ करंट डेंसिटी इज गिवन बाय J इज इक्वल टू KR स्क्वायर, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, तुमसे नहीं होता तो डोंट वरी, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगने वाला है। If current density in the conductor is given by J is equal to KR square, where K is constant and R is the radial distance from
सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, है ना। एक थिक कंडक्टर इमेजिन कर लो, आर जो है सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डिस्टेंस है, तो तुम्हें फाइंड द करंट डेंसिटी फ्रॉम 0 to r/2, है ना। सपोज मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाता हूँ, चलो ये तुम्हारा ऐसा मैंने बना लिया, ये क्या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और 0 to r/2 तक चाहिए ना, ये अंदर वाला, सॉरी जो अंदर दिख रहा है ना तुम्हें, जो ये 0 है, ये 0 है, यहां तक का बस, ये r/2 है और ये r है।